Good evening, everyone. Am I audible? Am I audible, students? सर ते करा विरासने नाही करणार कारण ते करते Ninad Thackeray. हेलो Ninad मैम Thackeray. Are you there, Ninad? यस मैम So, in the today's lecture, we are going to take paper solution of first paper mental ability. Okay? यस मैम Okay. Wait for a minute. How many students join the lecture? मैम 18 Only 18. Wait for 1 minute for them. So we will take paper solution of paper 1 mental ability. First paper's mental ability, okay? and there are 20 students 21 Okay, wait for it. Okay, let's start. So here is the first question of odd man out. What is the answer of the question? आंसर Why? क्वेश्चन नंबर एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 1 पर करके हर एक क्वेश्चन फिगर में इस लाइन के दोनों साइड पर लाइंस हमें दिखाई देंगे। लेफ्ट और राइट में दोनों लाइन से सेकंड थर्ड फिगर में भी लेफ्ट और राइट में लाइन से और फोर्थ फिगर में भी और फर्स्ट फिगर में टिप राइट में है लाइंस Okay, so option E is the answer of the question. Now come to the next question, question number 2. Here is the next question. आंसर इज सी Why option C? Because option C, every figure has 4 dots. Ma'am, every figure is same, but third figure is not same. Yes. And there So, is 4 dots in every figure. yes, that's why option C is the answer. Next question, question number 3. Ma'am, option number D. ऑप्शन डी इज द आंसर. वेरी गुड, क्योंकि हर एक क्वेश्चन फिगर में एरो है एक्सेप्ट ऑप्शन डी. दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज द आंसर. हम क्योंकि उसके दोनों साइड में ट्रायंगुलर पार्ट है वो वाला. राइट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. Ma'am, A. E. Why? And because every if you see second, third, fourth figure, there is no the shapes are not joined, but in option number A, the figures are joined. Yes. In option number A, the petals are attached. That's why option E is the answer. Come to the next question. Question number 6. Sorry, 5. Question number 5. Option number B. Option B is the answer. It is the question of figure matching. So, in the first option, in option number A, this line is wrong. In option number B, this one line is wrong. And in option number D, the position of the shaded circle and unshaded circle is different.
That's why option B is the correct answer. Come to the next question, question number 6. Ma'am, option D. Not D, it's option C. Option C is the answer. In option number D, this part is closed but not in the question figure. Am I correct? Yes, ma'am. Yes. Option C is the answer of the 6th question. Come to the next question, question number 8. Ma'am, answer is A. The answer is option number A. Yes. It is also the question of figure matching. So option A is the correct answer. Come to the next question. Question number 8. फिगर मैचिंग का क्वेश्चन है ये भी. Ma'am, B. Do you think it's B? यस मैम, क्योंकि वो ऑप्शन ए में बॉटम में जो लेफ्ट साइड के बॉटम में ट्रायंगुलर पार्ट नहीं है रोका, इसलिए वो गलत है. और अगर हम शेडेड पार्ट की देखेंगे प्लेस, तो वो ऑप्शन ऑप्शन ए में तो खैर सही है, अपन एरोस की पोजीशन है. ऑप्शन बी में सब कुछ है, पर जो ऑप्शन बी वाला पेटल सही है. यस. नो मैम, डी. डी. Option D is the correct answer. The next question, question number 9. ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है? फिगर कंप्लीनेशन मैम. यस, फिगर कंप्लीशन का क्वेश्चन है. बताइए क्या आंसर है इस क्वेश्चन का? मैम, ए. मैम, draw the first figures mirror reflection, मतलब water reflection. Yes, the water reflection of second part is the fourth part. So the water reflection of first part should be the third part. तो जब हम water reflection यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो ये वाला कंप्लीट यहाँ पर सर्कल बनेगा. ये वाली जो लाइन है यहाँ पर इस तरह से दिखेगी. यहाँ पर एक कर्व बनेगा और यहाँ पर भी इस तरह से कर्व बनेगा. तो ऐसे कर्व्स हमें कहाँ दिखाई दे रहे हैं? बी. ऑप्शन बी में दिखाई दे रहे. तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होना चाहिए. ऑप्शन बी में पूरा. यस. अब नेक्स्ट स्टूडेंट के पास चलते हैं. अथर्व इंगळे, आर यू देयर अथर्व? आर यू देयर अथर्व? Yes. अथर्व, here is the next question. Yes. Miss, my answer is option number B. So the correct answer of this question is option number B. यहाँ पर अगर हम कहेंगे कि the water reflection of the first part is the third part, so the water reflection of the second part should be the fourth. Or you can say that the mirror reflection of the third part is the fourth part, so the mirror reflection of the first part will be the Second second part. part. ये दोनों मिरर रिफ्लेक्शन है तो ये दोनों भी मिरर रिफ्लेक्शन बनेंगे. जब मिरर रिफ्लेक्शन हम कंप्लीट करेंगे तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी मिलेगा. ओके, चलते हैं नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 11. Miss, इसका आंसर Miss, इसका आंसर is option number C. इट्स ऑप्शन सी. ऑप्शन सी आंसर है और सॉल्यूशन हम बता सकते हैं मिरर और वाटर रिफ्लेक्शन, जस्ट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन.
The mirror reflection of the first question figure is first part is the second part. So the mirror reflection of the third part will be the fourth part, Yes. right? So option Yes. C, the correct answer. Very good. चलते हैं next question पर question number 12. मिस अगर हम क्वेश्चन फिगर में देखें तो जो नॉर्मल ट्रायंगल है एक वहां पर 3 लाइन्स है, और जो ट्रायंगल है जिसके अंदर एक ब्लैक स्क्वायर है 3 डॉट है उसे सिर्फ 2 लाइन है। तो ए और बी और डी ऑप्शन में सेम है, लेकिन ए ऑप्शन में एक ही लाइन है, डी ऑप्शन में 2 लाइन है, तो फिर ऑप्शन डी आएगा आंसर। आंसर क्या है देख लेते हैं. What is the answer? Option number D. But you are using option eliminate method. Can you explain the rule? यस मिस। मिस What is the मिस the first the plane triangle no and the triangle, the plane on the triangle, no what element? I want the explanation that if we rotate the second part to 180 degree, it will be like the third part. So we have to rotate the first part, so we will get the fourth part. It is 180 degree rotation. Yes. Okay, and then the answer is option number D. Next question, question number 13. Where is the question? Wait This for a second. answer is option number B. Because triangle has 3 sides and 3 corners. Square have 4 sides and 4 corners. Pentagon have 5 sides, 5 corners. So hexagon have 6 sides and 6 corners. Yes, it is the question of figure series completion. So, in the first question figure, here is a triangle which have 3 sides and 3 corners. Here is a square in the next question figure. It means 4 sides, 4 corners. In the third question figure, it is a pentagon. It means 5 sides, 5 corners. It Yes. means sides and the corners are increasing by 1. That's why the next structure should be hexagon. So option B is the answer. Very good. The next question, question number 14. Miss, my answer is option number B. Because first in the right side there is one arrow added, then in left side the arrow is added, then again in right side. Now it will be in left side. Okay. So one arrow is added in the each question figure. So option B is the answer. Next Yes. question. Miss, answer is option number C. Let's check the answer. Answer is C. Yes. Miss, because the figure is rotating or anti-clockwise. No, clockwise. It's clockwise. And how much degree? Uh, 90 degree. Yes. It's 90 degree clockwise rotation. So Yes. look at the arrow. Here is one arrow. If we rotate this arrow 90 degree in the clockwise direction, it will be like this. Then again like this. So next question figure में A वाला arrow कुछ इस तरह से दिखाई देना चाहिए. As well as Yes. इसके साथ आना चाहिए एक circle, not here, here, and this one structure also rotating through 90 degree. मतलब पूरा का पूरा structure ही 90 degree rotate हो रहा है in the clockwise direction. That's why the answer is Option number C. option number C.
Next question, question number 16. Miss Man says option number D because in first figure the star have three corners, means Three corners. three corners. Then second have four, a third have fifth corner, five corner, and then the answer figure must have six corners. Okay. Because So the corners. correct answer is option D. Yes. Next question, question number 17. Uh, uh, It is the question of analogy. Yes, Miss, the answer is option number D because if we see the first two figure relation, it is the first figure is rotating 90 degree, and if we rotate option that figure 90 degree, it will be option number D. It is 90-degree anti-clockwise rotation. So answer is D. Very good. Next Yes. question, question number 18. Clearly. Miss, answer is option number D because the first figure is the mirror image of second figure. So the third figure must be the mirror reflection of fourth figure, which is option number D. Yes, option D is the answer. If we say it is 180-degree rotation, is it correct? Yes. We can say mirror reflection or 180-degree rotation. Both the logics are correct, but the answer is D1. Next Yes. question, question number 19. Miss, my answer is option number A because first figure, in the first figure there is one line. In second figure there are two lines. So in third figure there is one circle. In the fourth figure it will be two circles. The structures are being doubled in the next question figure, right? One Yes. line, so two lines. One circle, there should be two circles. So option A is the correct answer. Very good. Next question. Just a minute. I will give the chance to the next student. Anurag Bhosle. Ma'am, am I audible? Yes, Anurag. So here is the 20th question of analogy. Yes, ma'am. Ma'am, my answer is option number B. Why? Ma'am, because if we see the first figure, ma'am, there is only one shape given. Ma'am, and in the second, the shape has been completed. Ma'am, then if, ma'am, there is in the third figure, there is one shape given. And ma'am, in the fourth figure, there will be the shape full completed. तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिया है, इसके जैसे तीन स्ट्रक्चर्स इसमें ऐड होंगे। यहाँ पर है तो इसके साथ साथ स्क्वायर्स ऐड होने चाहिए और कंप्लीट स्ट्रक्चर हमें मिलना चाहिए जस्ट लाइक ऑप्शन बी। तो बी इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21. Ma'am, my answer is option number C. ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से है? Ma'am, ma'am, 1 minute. Geometrical figure completion. Yes, ma'am. What is the answer? Ma'am, option number C. The answer is option number C. We have to draw the edges, broken edges like this. Yes, ma'am. Where are the edges like this? In option number C. One line, then one triangle, then curved line, and then again straight line. So Yes, ma'am. next question number 22.
Ma'am, my answer is option number D. No, ma'am. Okay. Option number C. Okay. No, ma'am. D only. D only. Okay, which one is D or B or D? Ma'am, D. Let's check. The correct answer is option number B, because if we see the size of the square, ये स्क्वायर का साइज पूरा इतना होना चाहिए, उसमें से हाफ साइज ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है, so we have to add only half size. It's too much bigger. Okay. So Yes, option ma'am. correct answer. Then next question, question number 23. Ma'am, Yes. ma'am, my answer is option number B. Okay, it's correct now. Option B is the correct answer. Very good. Next question, question number 25. Ma'am, my answer is option number A. Okay, you are saying that A and it's correct. Next one, what is it? Ma'am, it is a question from mirror reflection. Yes. Ma'am, the answer is option number D. Okay, you are saying that option D is the answer. Let's see. It's D. It's mirror reflection. Mirror reflection में हम क्या करते हैं? लेफ्ट में जो होता है उसको राइट में देखते हैं, जो राइट में होता है वो लेफ्ट में, मतलब राइट becomes left and left becomes right in the Yes. mirror reflection. It is the sign of mirror reflection. अगर ये यहाँ पर दिया जाए तो इसको हम water reflection कहते हैं. अब यहाँ पर सबसे लेफ्ट साइड पर मुझे यन दिखाई दिया है. अगर इसका वाटर रिफ्लेक्शन निकालेंगे तो यन का वाटर रिफ्लेक्शन हमने प्रैक्टिस की हुई है कि वाटर रिफ्लेक्शन कैसे ड्रॉ करते हैं. सो इट इज द वाटर रिफ्लेक्शन ऑफ लेटर यन. और अभी ये लेफ्ट में है तो अभी राइट साइड. सो इट इज ओनली ऑप्शन नंबर 4. So option D is the correct answer, right? Yes, ma'am. You can check all the structures, all the letters like this. Here is the next question, question number 26. Ma'am, my answer is option number A. Okay, you are saying that option A is the answer. Let's check. It's correct. It is also mirror reflection. इसके बाद बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट स्टूडेंट से पूछते हैं. शिवम दुगे. Hello. Yes, बेटा. Yes, ma'am. I have to ask you something. Okay, I will take your doubt in the end of the lecture. Yes. So here is the question, question number 26, and the answer is A. Next question is on the screen, question number 27. Ma'am, my answer is option number C. It's correct. Option C is the answer. Next question, question number 28. Ma'am, my answer is option number C. C is the correct answer. Look at this question. यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो हैंडल है ये लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है, तो आंसर फिगर में राइट में होना चाहिए, which is correct in option number 2 and option number 3. It is not correct in option 1 and option 4. Then look at this line. This is the slanting line like this. The mirror reflection of this line should be like this, which is in option number 3 only. So 3 is the correct answer. Option C is the correct answer. Yes. Next question,
Question number 29. What is this? Ma'am, in the exam, this questions that answer figure is wrong. Okay, this one is wrong. I know, because in this question figure यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कुछ इस तरह का एक कटा हुआ पार्ट हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस पार्ट यहाँ पर कोई भी ऑप्शन फिगर हमें सही से नहीं दिखाई दे रहा. दैट्स वाई इसके बारे में हम बाद में देखेंगे. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 30. Teacher, my answer is option number C. यस, इट्स ऑप्शन नंबर सी. अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमें दिखाई दे रहा है, जस्ट मिनट. ओके, हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एक पेपर है जिसको यहाँ पर इस एरो के जैसे फोल्ड किया है, देन अगेन ऐसे फोल्ड किया है, एंड देन अगेन दे फोल्ड द पेपर लाइक दिस एंड दे कट द पेपर लाइक दिस. अब क्या होगा? We will take the mirror reflection. ओके, तो इसका रिफ्लेक्शन सबसे पहले यहाँ पर कुछ इस तरह से बनेगा. ये 3 पेटल्स के जैसे हैं. फिर इस पेपर को हम इस तरफ अनफोल्ड करेंगे. तो अनफोल्ड करने के बाद सबसे पहले ये वाला जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर इस तरह से दिखेगा, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये कॉर्नर में हमें कुछ ऐसे दिखेगा. देन अगेन इसका रिफ्लेक्शन हमें नीचे की तरफ यहाँ पर ड्रॉ करना होगा. तो ये वाला जो है ना, इसको इस तरह से और इस तरह से कंप्लीट होना होगा. और ये जो दोनों कॉर्नर्स है, दोनों कॉर्नर्स में भी हमें इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देना चाहिए. तो ऐसा मतलब चारों कॉर्नर्स में स्ट्रक्चर है और बीच में भी सर्कल कंप्लीट है. इस तरह का स्ट्रक्चर हमें सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है. यहाँ पर ऑप्शन ए पूरा डिफरेंट है. ऑप्शन बी में सेंटर में फ्लोर की तरह नहीं दिया है, पेटल की तरह नहीं दिया है. ऑप्शन डी में भी यहाँ पर पेटल की तरह नहीं दिया है स्ट्रक्चर, और ये दोनों कॉर्नर्स ब्लैंक है. इट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ज्यादातर ऑप्शन एलिमिनेशन से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे, और वैसे क्वेश्चन भी एकदम सही. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31. It is the 31st question. Ma'am, my answer is option number C. The answer of the question is option number C only. यहाँ अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले पेपर को राइट टू लेफ्ट फोल्ड किया है, देन अप टू डाउन लेफ्ट फोल्ड किया है, एंड देन दे पंच 2 सर्कल्स लाइक दिस. तो इसको टीचर करेंगे तो अनफोल्ड करने के बाद ये 2 सर्कल्स यहाँ पर दिखेंगे. फिर मिरर रिफ्लेक्शन बनेगा और ये जो दोनों सर्कल्स हैं यहाँ पर रिफ्लेक्ट होंगे. तो ये सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी में सही से दिखाई दे रहे. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Just a minute, okay? Yes. Yes. This is the question number 32. Ma'am, my answer is option number A. Yes, it's A. Why not C? Because, ma'am, the position of that sign is wrong. The position of the small circles and the line is wrong in option number C. कभी कभी एग्जाम में जल्दबाजी में हम क्या करते हैं कि ये जो पोजीशन है, लाइन है छोटा सा, इसको देखना भूल जाते हैं. ऐसे नहीं करना है. हमेशा जब भी आप पेपर सॉल्व कर रहे हो तो कॉन्सेंट्रेट करना है कि अगर दोनों ऑप्शन सेम दिखाई दे रहे तो कहीं पर तो गड़बड़ है. इसलिए चारों ऑप्शंस देखे बिना आंसर नहीं देना है. ओके, सो ऑप्शन ए इज द आंसर. Next question, question number 33. Ma'am, my answer is option number B. You are saying that B. So ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है?
टीचर एम्बेडेड फिगर्स 10. तो यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करते थे, हर एक क्वेश्चन हर एक पार्ट को ऑफ द क्वेश्चन फिगर हम नंबर देते थे। कैसे नंबर देते थे, दैट दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द सेकेंड वन, दिस इज द थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ एंड एट। इसमें से कोई भी एक पार्ट उठाओ और हर एक क्वेश्चन फिगर में चेक करो और ऑप्शन एलिमिनेट मेथड का यूज करना है। सो आई एम टेकिंग द सेकेंड पार्ट फर्स्ट. If I check the second part in option number A, it is not occur. There. In option number B, it is there. Yes. In option number C, it is there. There. Option number D, it is It's not. not. So दो options हमने eliminate कर दिए. Now Then we take small 2 circles. it means part 1 and part 8. Yes. Is it in option these are they in option number B? Yes. But ma'am, in option number C, there is only 1 circle. So option C eliminated and the correct answer is option number B only. इस तरह से हम इन एम्बेडेड फिगर्स के जो क्वेश्चंस थे इनको सॉल्व कर सकते थे। इसमें हमें क्या दिया जाता है, तो कुछ पार्ट्स दिए जाते हैं और उन पार्ट्स को इकट्ठा कर कर कोई एक स्ट्रक्चर बनाना होता है जो ऑप्शन फिगर में उन्होंने हमें रेडी दिया होता है, उसमें से हमें फाइंड आउट करना होता है। सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34. Ma'am, my answer is option number B. यस इट्स बी, क्योंकि यहाँ पर पेटल्स की तरह स्ट्रक्चर दिए हैं एंड दीज आर द 5 पेटल्स, 5 स्ट्रक्चर्स, 5 पार्ट्स which are in option number B only. In option number C there are 6. So all the structures are different, only B is the correct one. Next question, question number 35. Ma'am, my answer is option number A. You are saying that A is the answer and it is correct one. Next question, question number 36. Ma'am, my answer is option number D. Your answer is option D. Let's check. It is correct. Is there any problem, any doubt? No. Ma'am, I have one doubt. Okay. Not in this question, sir. Okay. Next question, question number 37. Ma'am, it is this ये वाला किस चैप्टर से है? ये वाला एम्बेडेड फिगर से है। पिछला वाला जो चैप्टर है वो एम्बेडेड फिगर नहीं था बेटा। कौन सा टीचर? पिछले वाला जो क्वेश्चन था बच्चों ने बताया होगा। लेट्स सी द कमेंट्स, क्योंकि बच्चे गलतियां बहुत जल्दी से बता देते हैं, है ना। स्टूडेंट्स ने बताया तो होगा ही, लेकिन कमेंट्स कैसे देखेंगे हम। एम्बेडेड फिगर का मतलब होता है छुपी हुई फिगर को फाइंड आउट करना। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें छुपे हुए फिगर को फाइंड आउट करना है। लेट्स चेक। Ma'am, my answer is option number C. Okay, you are saying that option C is the correct answer. पिछला वाला जो क्वेश्चन था वो स्पेस विजुअलाइजेशन का क्वेश्चन था एंड दिस इज द क्वेश्चन ऑफ फिगर। तो इसमें एक स्ट्रक्चर दिया जाता है, जो हमें स्ट्रक्चर यहाँ पर है। स्क्रीन पूरा दिखाई दे रहा है बेटा आपको? Yes. जस्ट अ मिनट। सो इसमें क्या करना होता है, यहाँ पर क्वेश्चन फिगर में एक स्ट्रक्चर दिया गया है। इस स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करना है हमें ऑप्शंस में कि किन ऑप्शन के स्ट्रक्चर में ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये छुपा हुआ है। तो आपका आंसर क्या है? सी। और यहाँ पर है ऑप्शन सी में ये छुपा हुआ क्वेश्चन फिगर। दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज द आंसर। इस तरह से हमें फाइंड आउट करना होता है। इट इज ऑप्शन नंबर सी ओनली, एम्बेडेड फिगर्स।
Next question, question number 38. Just a minute. Question number 38 is on the screen now. Yes. Ma'am, my answer is option number D. You are saying that option D is the answer and it is the correct one. Let me highlight the structure. Here is the structure which is in the question figure. Yes. So option D is the answer. Let's come to the next question. Ma'am, my answer is option number C. You are saying that C is the answer and it is the correct one. Let's highlight the structure. Here is the structure which is in the question figure. So option C is the answer. And the last question of mental ability is question number 14. Let me Ma'am, give my a answer chance. is option number D. Sanjeet. What do you think, Sanjeet? Hello, ma'am, I'm audible. Yes. Ma'am, my answer is option number D. You are saying that D and it is the correct one. Where is the structure in option number D? Look at this. This is the straight line and this is the slant one. Am I correct? Yes, ma'am. Straight line and the slant line. This is the structure which is in the question figure. So this is all about mental ability. मेंटल एबिलिटी के इतने ही क्वेश्चन थे जिसमें से एक जो क्वेश्चन है जो मैंने अभी यहाँ पर छोड़ दिया था जिसमें हमें लग रहा है कि ऑप्शन गलत है क्योंकि जो क्वेश्चन फिगर था क्वेश्चन फिगर में जो कट्स दिए गए थे वो कुछ डिफरेंट थे और जो ऑप्शंस थे ऑप्शंस में कुछ अलग ही ऑप्शंस दिए गए थे राइट चलो अब इसके बाद इंग्लिश का सॉल्यूशन ले ले क्या Yes, ma'am. Ma'am, can I read the passage? पैसेज नहीं रीड करेंगे सिर्फ क्वेश्चंस देखेंगे Here is the first question. Mama, What is your answer? B. It's B. It is correct. And where is the answer in the passage? The question is that the area affected by dash is limited. Mummy, पैसेज first पूरा पूरा पैसेज नहीं दिखाई दे रहा है तो हम क्वेश्चंस ले लेते हैं आंसर्स देख लेते हैं अगर किसी को कुछ डाउट होगा तो बाद में पूछ लेना ठीक है तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज द स्काई इज क्लाउड्स select the subject in the sentence Option number A. ऑप्शन ए सब्जेक्ट क्या होता है जो भी वहां पर उस सेंटेंस में डोअर होता है जो काम करने वाला होता है एक्शन करने वाला होता है उसको हम सब्जेक्ट कह सकते हैं या फिर सब्जेक्ट वो भी होता है जिसके बारे में हम मतलब जहां पर प्रोनाउन और नाउन
हम एज अ सब्जेक्ट 99% प्रोनाउन और नाउन को ही हम एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं। कम बार ऐसे होता है कि सब्जेक्ट कुछ और चीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द वर्ब फॉलोइंग सेंटेंसेस। दिस टर्म्स अराइज इन द मंथ बिटवीन जून एंड अक्टूबर। वर्ब फाइंड आउट करना है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इज द वर्ब। वर्ब क्या होता है? जो एक्शन वर्ड होता है और सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट करता है, ऐसा जो वर्ड होता है उसको हम वर्ब कहते हैं, राइट? यस मैम। प्ले, गो, कम, these are the verbs. Next question, question number 4. The मैम ऑप्शन meaning, hmm, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द आंसर। ये सभी आंसर्स हमें पैसेज में मिलेंगे। द ऑपोजिट वर्ड ऑफ हाई, लो। हाई, लो, ये अकॉर्डिंग टू पैसेज रहने वाला है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, टेंस में बहुत सिंपल चीज होती है, आपको सिर्फ फॉर्मूलाज याद रहना जरूरी है टेंस के। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको रिवाइज करती हूँ। देर आर 12 टाइप्स ऑफ टेंस। 12 टेंस होते हैं। सबसे पहले होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमेशा आपको V1 फॉर्म देखने को मिलता है, या फिर V5, मतलब जो यस या फिर ईएस फॉर्म होता है वर्ब का, वो आपको देखने को मिलता है। दिस इज ओनली वन, ओके। इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। उसके बाद जहां पर V2 फॉर्म यूज किया जाता है उसको हम सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं, राइट? यस मैम। और जहां पर शैल या फिर विल के साथ में V1 फॉर्म यूज किया जाता है उसको हम सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं। दिस आर द फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गए सिंपल सेंटेंस, मतलब सिंपल टेंस। इसके बाद में आता है कंटिन्यूअस टेंस। अगर समझ लीजिए कहीं पर आपको एम ऑब्लिक इज ऑब्लिक आर, these आर द हेल्पिंग वर्ब्स। ये हेल्पिंग वर्ब्स और V4 फॉर्म दिखाई दे रहा है, मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म दिखाई दे रहा है, तो ये जो टेंस होता है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, ओके। उसके बाद में अगर समझ लीजिए आपको कहीं पर वॉज वेयर दिखाई दे रहा है और उसके साथ में V4 दिखाई दे रहा है, तो ये होता है V4। तो ये होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ओके। अगर आपको समझ लीजिए कि शाल बी या फिर विल बी दिखाई दे रहा है, शाल, विल प्लस बी प्लस V4, तो ये टेंस कौन सा होगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसके बाद में होता है परफेक्ट टेंस। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब्स यूज किए जाते हैं हैव, हैज, और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है, तो ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर हैड के साथ में V3 दिखाई दे तो ये होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर समझ लीजिए कि विल और शल, विल और शल रहेंगे ना, तो फ्यूचर टेंस रहेगा तो शाल या फिर विल तो रहेगा ही रहेगा, ओके। शाल विल के साथ में अगर आपको हैव दिखाई देता है और प्लस V3 दिखाई दे रहा है तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। तो दीज आर द 9 टेंसेस। और जो फोर्थ टेंस होता है उसमें हमेशा बिन का यूज किया जाता है। ये सेंटेंसेस बहुत कम होते हैं, वहां पर बिन यूज किया जाता है इन ऑल 3 टेंसेस, ओके। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हैज के साथ में V3 यूज किया है, तो ये टेंस कौन सा होगा?
Present perfect tense. प्रेजेंट परफेक्ट Tense. तो इस तरह से ये फॉर्मूलाज है। अगर किसी को नहीं पता है, याद करने हैं, तो मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको शेयर करूंगी। ठीक है, दिस इज द पास्ट परफेक्ट टेंस ऑप्शन ए, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, pick out the missing letters. A. What is this word? Present. Present. Mean by present? Yes, ma'am. क्या मतलब होता है प्रेजेंट वर्ड का? We are alive in class. We are there in class. ओके, क्लास में प्रेजेंट बोलते हो तो आप वहां पर हो इसलिए प्रेजेंट बोलते हो। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान भी होता है, और प्रेजेंट का मतलब जो हम किसी को गिफ्ट देते हैं उसको भी प्रेजेंट कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Option D. चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ द वर्ड प्रूफ। तो प्रूफ का जो प्लूरल होता है वो होता है प्रूफ्स। इट इज द सफिक्स यस। नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑपोजिट फॉर एक्टिव? Passive. द ऑपोजिट ऑफ एक्टिव इज पैसिव। वोकेबुलरी पर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे आपको। फिल इन द ब्लैंक, द साइंस दैट ट्राइज टू अंडरस्टैंड पास्ट इवेंट्स इज कॉल्ड ऑप्शन ए। गेज द मीनिंग ऑफ एड ऑन। Make beautiful all. Attractive. Next question, question number 12. Write yes or no. Rangoli occupies a special place in the festival of Diwali or Deepavali. Yes. C. Yes. C is the correct. Next question, question number 14. Sorry, question number 13. Which word in the given sentence will begin with letter B? Beautiful. ब्यूटीफुल। बिगिन मतलब शुरुआत, तो किस वर्ड की शुरुआत बी से हो रही है? ब्यूटीफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। चूज द इनकरेक्ट एडवर्ब। Lovely. Option number D. अगर लवली एडवर्ब नहीं है, इट इज इनकरेक्ट वन, तो करेक्ट क्या होना चाहिए? Remainingly. What? एडवर्ब किसे कहते हैं बताइए जरा, एडवर्ब किसे कहते हैं? Tell about noun, pronoun. नो, नो, जो वर्ब के बारे में जानकारी दे, विच टेल्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। वर्ब के बारे में जानकारी दे तो एडवर्ब कहा जाता है। नाउन के बारे में जानकारी दे या फिर प्रोनाउन के बारे में जानकारी दे, प्रोनाउन और नाउन एक ही हुआ यहाँ पर, क्योंकि नाउन प्रोनाउन नाउन के लिए ही यूज होता है, तो उसे कहा जाता है एडजेक्टिव। यहाँ पर डिफरेंस है, यहाँ पर इनकरेक्ट एडवर्ब कहा गया है। तो इसमें से करेक्ट एडवर्ब कौन से है और इनकरेक्ट कौन सा है? Truly, nicely. Are correct and lovely is incorrect. तो लवली एडवर्ब नहीं है, जरा एक्सप्लेन करके बताएंगे कि क्यों नहीं है ये एडवर्ब? Because it is not verb. It is not action verb. नो नो, एक्शन वर्ब तो होगा ही नहीं ना। एक्शन वर्ब के बारे में जानकारी देने वाला वर्ड जो होता है उसको हम एडवर्ब कहते हैं। यू आर नॉट गेटिंग दिस? How, ma'am? यस। How, but it is not verb. देखिए,
अगर हमने समझ लीजिए कि कोई एक वर्ड हमारे पास है, इसको सेंटेंस में यूज करने की कोशिश की जो वर्ब के बारे में जानकारी दे। लवली, ये इस वर्ड को लेकर एक सेंटेंस आप मुझे बताइए। आई एम लवली टू माय टॉयज। सॉरी, आई एम बिहेविंग लवली टू माय टॉयज। ओके। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं दैट इट इज अ लवली प्लेस, राइट? इट इज अ लवली प्लेस। तो यहाँ पर लवली वर्ड किसके बारे में जानकारी दे रहा है? प्लेस के बारे में। हाउ इज द प्लेस? लवली। तो प्लेस एक नाउन है। नाउन के बारे में जानकारी देने वाला वर्ड क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो लवली कोई यहाँ पर एडजेक्टिव है, एडवर्ब नहीं है। अगर इसको एडवर्ब फॉर्म करना है तो लविंगली करना होगा। क्या करना होगा? लविंगली। He takes care of me lovingly. वो मेरी केयर करता है, कैसे? प्यार से, राइट? तो ऑप्शन डी इज द आंसर। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। वर्ब के बारे में जानकारी देने वाला एडवर्ब होता है, नाउन के बारे में जानकारी देने वाला एडजेक्टिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। सबसे पहले एक इंफॉर्मेशन, एक इंस्ट्रक्शन सुनो सबसे पहले कि अगर समझ लीजिए कि कल आपने ये फर्स्ट टेस्ट का पहला पेपर कल आपने सॉल्व किया था। अगर इसमें आपको कुछ भी डाउट है रिगार्डिंग मेंटल एबिलिटी एंड इंग्लिश और मेंटल एबिलिटी के बारे में कोई भी डाउट है तो वो डाउट मुझे उसकी फोटो या फिर उस क्वेश्चन का नंबर भी अगर आप शेयर करेंगे, टेस्ट का नंबर और क्वेश्चन का नंबर, मैम दिस इज द टेस्ट नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, आई हैव डाउट इन दिस क्वेश्चन, ऐसे अगर आप शेयर करेंगी तो मैं उस क्वेश्चन को यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकती हूँ। माई नंबर इज 9284318848। नोट डाउन दिस नंबर एंड इफ अगर आपको कोई भी डाउट है तो टेस्ट नंबर और क्वेश्चन नंबर शेयर करना है और सब्जेक्ट शेयर करना है, किस सब्जेक्ट का है, लाइक इंग्लिश और मेंटल एबिलिटी, क्योंकि ये दोनों ही सब्जेक्ट मेरे पास है। मैथ तो मैं नहीं लेती हूँ, मैथ का आप बोले मैम से शेयर करना, ठीक है? So this is the next question, question number 15. If C, I walk, ऑप्शन नंबर डी लेग। option D, legs, it's correct. Next question, fill in the blanks. Dash in our food give us the ability to resist diseases and it is vitamins. Next question, if fats, oil, dash iron. शुगर। Sugar, no. स्लैच। No starch, no sugar, no fiber, it's minerals. And where is the answer? Look at this. Minerals, iron. Look at this. Minerals, iron, calcium, and all. Okay. यस मैम। Next question, question number 17. Sorry, question number 18. Which is one example of minerals? So it's calcium. Here is the answer. Same जो हमने लाइन देखी थी वही आंसर है इसका भी। मिनरल्स का एक एग्जांपल हमें देना है तो मिनरल्स का एक एग्जांपल कैल्शियम भी है। सो कैल्शियम इज द आंसर। Next question, yes or no? Minerals have an important part to play in all the necessary functions of our body, and it's correct. Next question,
write down similar word and the Miss, word is necessary. Essential. The word is essential. Option C. Essential. Okay. yes ma'am. This was the टेस्ट पेपर 1 जो आपका कल पेपर हुआ था, उसका यहाँ पर मैंने आज आपको सॉल्यूशन दे दिया है। अगर इसमें से कोई भी आपको डाउट्स थे तो आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आज के लेक्चर में हमने लाइव सॉल्यूशन दिया, वैसे टेस्ट पेपर 2 का सॉल्यूशन कल के लेक्चर में होगा। टेस्ट 3 का सॉल्यूशन सैटरडे के दिन होगा और जिस दिन हमारा लेक्चर नहीं रहेगा उस दिन मैं आपको रिकॉर्डिंग वीडियोस में सॉल्यूशन भेज दिया करूंगी नेक्स्ट डे। ओके। क्वेश्चन नंबर 19 जो मेंटल एबिलिटी का था, जिसमें डाउट है, हमने देखा डाउट है तो वो क्वेश्चन गलत है बेटा, वहां पर कोई ऑप्शंस नहीं है। ओके, उसका हम आपको बोनस दे देंगे, ठीक है। ओके चलिए, लेकिन याद रखना नेक्स्ट टाइम से जिस भी क्वेश्चन में डाउट है मुझे व्हाट्सएप पर सबसे पहले उस क्वेश्चन का नंबर या फिर स्क्रीनशॉट शेयर करना है। ओके। ओके स्टूडेंट्स, चलिए। यस प्रियांशी। हेलो मैम। यस बेटा। यस बाय एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट। हेलो मैम। यस प्रियांशी। मैम वो 39 नंबर की एक टेस्ट हुई ना अभी संडे की, तो उसमें एक क्वेश्चन था कि टेलीविजन इज इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ, तो उसका आंसर एंटरटेनमेंट था लेकिन वहाँ पे नॉलेज दिखा रहा था। Yes, but entertainment is the correct answer of this question, beta. There ओके was a मैम। mistake. Okay. ओके पर आपका बाय। स्कोर कम हो गया, आप खुद से समझ लेना कि उसकी आंसर सही था तो मेरा स्कोर इतना आएगा उसमें। ओके। ओके ओके बाय, गुड नाइट। बाय मैम।